In this video, we'll cover forward chaining and backward chaining in AI. So before looking towards forward chaining and backward chaining, we'll understand first the importance of this in AI. So in AI, forward and backward chaining is one of the important topic, but before understanding this, let's first understand from where these two terms came from, right? So this is came from the inference engine. So inference engine, this is one of the component of intelligence system in AI, which applies some logical rules to the knowledge base to infer new information from the known facts, right? So knowledge base consists of the sentences in first order logic. So we'll apply these rules to this knowledge base and to infer new facts from the given knowledge base, right? So the first inference engine was the part of the expert system. So inference engine commonly proceeds in two modes, that is forward chaining and backward chaining. So before looking towards forward chaining and backward chaining, these two clauses are very much helpful in this, horn clause and the definite clause. So these are the forms of the sentences which enables knowledge base to use more restricted and efficient inference algorithm. So the logical inference algorithm use this forward chaining and backward chaining approaches, which requires knowledge base in the form of first order logic. So what is the definite clause? Definite clause is the disjunction of literals, right? Means and clause we use over here to join different literals. So exactly one positive literals is known as the definite clause or strict horn clause. Horn clause is what? Horn clause in which is the disjunction of literals at most one positive literals, right? For example, disjunction of literals, disjunction means or clause, right? So or clause से हम लोगों ने ये वेरिएबल्स जो ज्वाइन किया एंड उसमें से एक वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. वेरिएबल को यहाँ पे क्या बोला गया है? लिटरल बोला गया है, राइट? So proceed with forward chaining. So what is forward chaining? Forward chaining is also known as the forward deduction. So this is the method. This is one of the reasoning method when using an inference engine. So forward chaining is the form of reasoning which starts with the atomic sentences in the knowledge base and applies various inference rules in the forward direction to extract more data until the goal is reached. So यहाँ पे known facts से start होता है to reach to the goal node, right? So what are the different properties of forward chaining? It is the down up approach. It moves from bottom to top. So it is the process of making conclusion based on the known facts or data by starting from the initial state and reaches the goal state. तो यहाँ पे क्या है? फैक्ट्स नोन रहेंगे, गोल स्टेट हमें मीन्स डाउन अप अप्रोच यूज किया जाता है जहाँ पे गोल स्टेट हमें डिराइव करनी है फ्रॉम द नोन फैक्ट्स, ठीक है? सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, राइट? सो इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको डेटा ड्रीवन अप्रोच बोला जाता है. सो दिस इज कॉमनली यूज्ड इन द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज clips, business and production rules, etc. So we'll understand this using one of the example. Same example we can use for proving forward chaining and backward chaining. So what is the example? Those sentence is given, right? So this what is the next step? सेंटेंस को हमें क्या कन्वर्ट करना है? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करना है. रूल्स हमें इसमें से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? So we'll understand forward chaining and backward chaining both using the same example. So here one example given in the form of English sentences, and from these sentences we need to prove that robot is a criminal. So what is the first step?
these sentences we need to convert it into the first order logic. So what is the sentence given? As per the law, it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. Country A, an enemy of America, has some missiles, and all the missiles were sold to it by robot who is an American citizen. तो दिस इज द इंग्लिश स्टेटमेंट इज गिवन. सो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करना होगा. सो फर्स्ट सेंटेंस क्या हम लोग इसमें से उठाएंगे, दैट इज इट इज़ अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन्स टू होस्टाइल नेशन. ये एक सेंटेंस उठाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में. सो हियर वी कैन सी फैक्ट्स कन्वर्जन इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. तो फर्स्ट स्टेटमेंट उठाया, इट इज़ अ क्राइम फॉर एन अमेरिकन टू सेल वेपन्स टू होस्टाइल नेशंस, राइट. सो हाउ मेनी प्रेडिकेट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर? 3 प्रेडिकेट्स, दैट इज अमेरिकन, वेपन्स एंड होस्टाइल. सो दिज आर द 3 प्रेडिकेट्स. तो अमेरिकन ये एक पर्सन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज पी. वेपन, वन ऑफ द वेपन वो सेल करेगा, राइट. सो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज क्यू. एंड होस्टाइल नेशन, तो एक कोई तो भी होस्टाइल नेशन को अमेरिकन सेल करेगा वो वेपन, तो होस्टाइल नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज आर. ठीक है. तो अभी इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एन अमेरिकन. सो हाउ वी रिप्रेजेंट अमेरिका ऑफ पी. एंड सेल वेपन्स, वेपन्स को वो क्या करेगा, सेल करेगा, राइट. सो वेपन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेपन्स ऑफ क्यू. ठीक है. एंड सेल करेगा उसको, कौन सेल करेगा, अमेरिका सेल करेगा. क्या सेल करेगा, वेपन सेल करेगा. किसको सेल करेगा, होस्टाइल नेशन को सेल करेगा. तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, सेल्स ऑफ पी क्यू आर एंड होस्टाइल ऑफ आर. इम्प्लाइज, तो वो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया. सो इम्प्लाइज क्रिमिनल ऑफ पी. So this is how the first statement is converted into the first order logic. Now next sentence is what, country A has some missiles. ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट. नाउ कंट्री ए हैज़ सम मिसाइल्स, मीन्स कंट्री ए के पास कुछ मिसाइल्स है. ठीक है, मीन्स उसके पास बोलने से हम लोग उसको एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, सपोज ओन्स. सो फॉर ऑल P, owns of A, P means country A इस P weapons, P नाम के मिसाइल को कैरी करता है, राइट. एंड मिसाइल्स ऑफ P. So it can be written at like this, using the definite clause and existential instantiation. It can be written as owns of A, T1 or missiles of T1. ठीक है. Now next statement is what, all of the missiles were sold to country A by robot. All of the missiles, so all P, missiles of P, right. And owns of A, P, क्योंकि A के पास, कंट्री A के पास जो भी वेपन्स थे, माइल्स थे, राइट. तो वो क्या करेगा, सेल करेगा किसको, A कंट्री को. तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, फॉर ऑल P, मिसाइल्स ऑफ P एंड ओन्स ऑफ A, P इम्प्लाइज सेल करेगा. कौन सेल करेगा, रोबोट सेल करेगा. किसको सेल करेगा, A कंट्री को सेल करेगा. क्या सेल करेगा, मिसाइल सेल करेगा, राइट. सो सेल्स में 3 पार्ट थे, दैट इज पर्सन, वेपन एंड होस्टाइल नेशन. तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, राइट. माइल्स आर वेपन्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइल्स ऑफ P इम्प्लाइज वेपन्स ऑफ P. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनिमी ऑफ अमेरिका इज नोन एज होस्टाइल. तो हाउ वी रिप्रेजेंट, एनिमी इज द प्रेडिकेट, होस्टाइल नेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं. तो एनिमी ऑफ अमेरिका इज नोन एज होस्टाइल. तो एनिमी ऑफ अमेरिका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनिमी ऑफ P, अमेरिका इम्प्लाइज होस्टाइल ऑफ P. ठीक है. Now country A is an enemy of America. So enemy A, America, right. So robot is American. So American of robot. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. क्लियर. सो जो भी एग्जाम्पल था उसको फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमने कन्वर्ट किया. उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे अभी फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग ऑन दिस
रूल्स जो हमने डिराइव किए हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी फॉरवर्ड चेनिंग में क्या है कि नॉन फैक्ट से हम लोग क्या है कंक्लूजन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास नॉन फैक्ट्स क्या थे, अमेरिकन वेपन्स एंड होस्टाइल नेशन, ये हमारे पास 3 फैक्ट्स थे, राइट। सो वेपन्स, सेल्स एंड होस्टाइल, ये हमारे पास 3 फैक्ट है फर्स्ट स्टेप में, राइट। तो सी हियर इन फर्स्ट स्टेप we'll start with the known facts and we'll choose the sentences which do not have implications, ठीक है। तो जिसमें इम्प्लीकेशन नहीं है ऐसे हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे इम्प्लीकेशन को डिराइव करने के बाद जो भी आते हैं वो फर्स्ट छोड़ के हम लोग लेते हैं, तो सेल्स, वेपन्स एंड होस्टाइल राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो। तो दैट वी हैव कंसीडर एज द नोन फैक्ट्स, वेपन्स, सेल्स एंड होस्टाइल, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो है ये वेपन्स, होस्टाइल एंड सेल्स किस किस से डिराइव हो रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग इसमें से कंसीडर करेंगे। जैसे वेपन्स ऑफ पी किससे डिराइव हो रहा है, मिसाइल्स ऑफ पी। तो नेक्स्ट लेवल में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सपोज मिसाइल्स ऑफ पी कंसीडर किया। नाउ यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया है, पी के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, T1 रखा है, ठीक है। सो पी को सब्स्टिट्यूट किया है T1 से, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पी के जगह पे क्या आ गया, हमारा T1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, तो ये किसके लिए डिराइव हुआ था, मिसाइल से वेपन्स डिराइव हुआ था, इसीलिए ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की वेपन्स एंड मिसाइल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, दैट इज वेपन्स हो गया। नाउ होस्टाइल ऑफ पी, होस्टाइल ऑफ पी किससे डिराइव हुआ है, एनिमी पी कॉमा अमेरिका से। तो एनिमी ए कॉमा अमेरिका हमने लिया बिकॉज पी को हमने कन्वर्ट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया ए से, ठीक है। तो दैट इज रिटन इन दिस रूल, so P will be substituted as A, so enemy of A comma अमेरिका। so हमने ऐसे किया, तो P को हमने सब्सटीट्यूट किया A से, तो यहाँ पे भी अमेरिका का A आ गया, क्लियर। बिकॉज हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना है प्रूव करने के लिए, इसीलिए, ठीक है। नाउ इसीलिए यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की कि एनिमी ऑफ A comma अमेरिका विल डिराइव होस्टाइल ऑफ A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेल्स। सो सेल्स में क्या है, रोबोट, ये किससे डिराइव हो रहा है, मिसाइल्स एंड ओन्स से, राइट। सो ओन मिसाइल्स ऑलरेडी था, ओन्स हमने लिया, तो यहाँ पे P कॉमा T1 था, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया A कॉमा T1 से, राइट, एज वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द A कॉमा, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो लाइक दिस इट विल बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या था, ओन ऑफ A कॉमा P था, तो P के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे T1 रखा है, तो A कॉमा T1। तो ये दोनों कंसीडर करके ये डिराइव हुआ है, इसीलिए इन दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में आ गया। देखो यहाँ पे एक ड्रॉ किया और ये दोनों मिलके आया, इसीलिए ऐसे ड्रॉ किया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अस, दैट इज अमेरिकन, एक रोबोट ये अमेरिकन है ये प्रूव करना है, इसलिए एक यहाँ पे और एक हमने प्रेडिकेट ऐड कर दिया, नॉन फैक्ट ऐड कर दिया, क्लियर। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज हाउ इट विल वर्क। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में ये किसी और से डिराइव हो रहे हैं क्या, यहाँ पे इफ़ यू कंसीडर हियर, ये और किसी से डिराइव हो रहे हैं क्या, जैसे अमेरिकन ऑफ रोबोट, मिसाइल्स ऑफ टी, किसी से डिराइव हो रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड में यू कैन सी नहीं हो रहे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये स्टॉप हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, रोबोट इज अ अमेरिकन, सो अमेरिकन ऑफ रोबोट ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो वो किस किस के थ्रू होगा, अभी अमेरिकन ऑफ रोबोट ये क्रिमिनल है, ये प्रूव करना है ना, रोबोट इज क्रिमिनल, ये हमें प्रूव करना है। तो क्रिमिनल ऑफ रोबोट ये करना है, तो ये किस किस के थ्रू डिराइव हुआ है, देखो। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया, क्रिमिनल ऑफ रोबोट, मीन्स पी के जगह पे हमने क्या रखा, अभी रोबोट को रखा। तो ये किस किस के थ्रू डिराइव हुआ, अभी अमेरिकन ऑफ पी, वेपन ऑफ क्यू, सेल्स एंड होस्टाइल। तो सी हियर यू कैन सी
क्रिमिनल ऑफ रोबोट में क्या था, अमेरिकन, पी को रिप्लेस किया रोबोट से, तो ये आया हमारा, ये आया, ये वाला एक आया, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा, वेपन, तो वेपन आया। नेक्स्ट क्या था, सेल्स, सेल्स आया। नेक्स्ट क्या था, होस्टाइल, तो होस्टाइल आया। सो इसका कॉम्बिनेशन करके क्रिमिनल ऑफ रोबोट यूजिंग फॉरवर्ड चेनिंग वी हैव प्रूव्ड। क्लियर। यहाँ पे क्या है, नोन फैक्ट्स से हमने स्टार्ट किया था। ये नोन फैक्ट्स मीन्स राइट हैंड साइड में जो भी थे वो हमने कंसीडर किए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल्स थे, ये राइट हैंड साइड में जो डिराइव हुए उसके लेफ्ट हैंड साइड में किससे डिराइव हुए वो कंसीडर किए। उन दोनों के बीच में का हमने ये भी कंसीडर किया कनेक्शंस, एंड इसके थ्रू हमने लास्ट में क्रिमिनल ऑफ रोबोट ये प्रूव किया कि रोबोट ये क्रिमिनल है यूजिंग फॉरवर्ड चेनिंग। सो दिस इज हाउ फॉरवर्ड चेनिंग वर्क्स। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल विल सॉल्व यूजिंग द बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है, तो बैकवर्ड चेनिंग में क्या होगा अभी कि हमें क्या करना है, टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना है कि गोल हमें पता है, गोल के थ्रू ये ऐसे नीचे जाना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो दिस इज़ वेरी इजी कि हमें यहाँ पे सेम रूल्स हमने उठाए वहाँ से। ठीक है, तो बैकवर्ड चेनिंग में क्या है, एट द फर्स्ट स्टेज विल टेक द गोल फैक्ट दैट इज क्रिमिनल ऑफ रोबोट हमने कंसीडर किया, एंड विल इन्फर अदर फैक्ट्स, and at the last we'll prove those facts true, right? So our goal is robot is criminal, ये हमने कंसीडर किया। सो क्रिमिनल ऑफ रोबोट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, अभी ये किससे डिराइव हुआ है, क्रिमिनल ऑफ रोबोट किससे डिराइव हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या आएंगे, क्रिमिनल ऑफ पी, ये किससे डिराइव हुआ है, अमेरिकन ऑफ पी, वेपन ऑफ क्यू, सेल्स ऑफ पी क्यू आर एंड हॉस्टाइल ऑफ आर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सारे चारों आएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले, राइट। तो सी हियर, यू कैन सी हियर अमेरिकन ऑफ, अभी यहाँ पे पी के जगह पे क्या रखा है, रोबोट रखा है, तो पी के जगह पे सारी जगह पे रोबोट जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिर से राइट हैंड साइड में ये किससे डिराइव हुए ये जानना है हमें। ठीक है, अभी वेपन किसके थ्रू मीन्स वेपन किसके थ्रू डिराइव हुआ है, तो राइट हैंड साइड में वेपन्स देखो, यहाँ पे फोर्थ वाले इसमें मिसाइल्स। सो नेक्स्ट लेवल में क्या आएगा, मिसाइल्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वाले सारे आ जाएंगे, राइट। सो मिसाइल्स आ जाएगा, एनिमी ऑफ पी कॉमा अमेरिका आ जाएगा, देन और क्या आ जाएगा, ये थर्ड वाला, थर्ड, 5, 4, 5, इसमें से जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो सारे आ जाएंगे, राइट। सो सी हियर वी कैन सी कि मिसाइल से वेपन जनरेट हुआ था, तो यहाँ पे Q को T1 को रिप्लेस किया Q के साथ से। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स डिराइव हुआ था किसके थ्रू, सी यार सेल्स किसके थ्रू डिराइव हुआ था, मिसाइल्स एंड ओन्स के थ्रू, राइट। सो नेक्स्ट इसमें मिसाइल्स ऑलरेडी एडेड है, ओन्स ऐड हुआ है, देखो मिसाइल्स ओन्स भी ऐड हुआ, ये दोनों के थ्रू ये डिराइव हुआ था, तो ऐसे डिराइव हुआ। नेक्स्ट होस्टाइल किसके थ्रू हुआ था, वेपन एनिमी के थ्रू, राइट। तो इट विल बी लाइक दिस। तो इसके आगे और प्रोसीड करने के लिए है क्या, नहीं है। सो दिस इज हाउ द बैकवर्ड चेनिंग वर्क्स। सो इट्स वेरी इजी, राइट। तो यहाँ पे ए को आर से रिप्लेस किया था, ऑल द सब्सटीट्यूशन वेयर शोन ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज हाउ बैकवर्ड चेनिंग works. So that's all for today's video. In this video we saw forward chaining and backward chaining with the help of example. If you like my video, please press on like icon and subscribe my channel, and for more updates press bell icon. Thank you.